Hello everyone and welcome to my YouTube channel The Learner, and we are back with another video. Now I know it's been so long, it's been ages since I've uploaded a video on this channel, but this time I am back, and in this video I'm going to be making a commitment that this video and all my forthcoming videos are going to add up a lot of value to your life, whether in the short or in the long term. So in this video I'm going to be touching a very trendy topic from the world of cryptocurrencies. Now there's been a lot of speculations going on and around the globe on whether or not the citizens of various countries are going to be allowed by their respective governments to whether invest or trade cryptocurrencies in order to earn incomes. Well, I'm not going to be touching topics like what cryptocurrencies are and how blockchain technology works and how you can earn income by trading or investing, because there's a lot of videos out there on such topics. But in this video I'm going to be telling you that the incomes that you're making by investing or trading in crypto is liable to income tax in India. Well, nobody told you that, right? Well, I know there's been a lot of questions for the past couple of weeks that I've been having on how the taxation system works on and around the cryptocurrency technology and how we, while filing our returns, are liable to pay taxes. So without any further ado, let's move on to the table then. So this video is going to be divided into two parts. The first part being the current state of cryptocurrency taxation in India, and the second part being the future state of cryptocurrency taxation based on the current evidences that we have. So before anything else, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें इनकम टैक्स पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्या है क्रिप्टोकरेंसी इनकम पर। इस बारे में आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। सो अप अंटिल अप्रैल 2020 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्रिप्टो करेंसीज़ में जितनी नेट या एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं वो थी अप्रॉक्सीमेटली 123 मिलियन USD, विच इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। एंड पोस्ट अप्रैल 2020 टिल डेट अगर हम बात करें तो हमारी जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन USD है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम्स the amount of investment we had in April 2020. तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अपस्केल हुआ है इन्वेस्टमेंट में और कितना पैरेलल अपस्केल होगा ट्रांजैक्शंस में, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग, परचेज, सेल, कांस्टेंट, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में, और कितना अपस्केल होगा लोगों की इनकम में। अब इस पर्टिकुलर अपस्केल को कैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी हो गया कि वो टैक्सेशन पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करें। So before analyzing the current state of crypto taxation in India, we need to have a look at a brief history of events around cryptocurrencies in India. So क्या हुआ था? Around mid of 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया था जिसके तहत banks in India are prohibited from facilitating the transactions around cryptocurrencies, यानी कि बैंक्स कैन नॉट फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, जिसकी वजह से हम लोग इंडियन बैंक्स में पैसे जमा करके ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज नहीं कर सकते थे और ना ही ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा के इंडियन बैंक्स में डाल सकते थे। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर को 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिवर्स कर दिया, जिसके बाद as a citizen of India, I am legally allowed to trade in cryptocurrencies right now. Although I am not allowed to use cryptocurrencies as legal tender, but मैं cryptocurrencies में invest कर सकता हूँ और मैं cryptocurrencies को सेल कर सकता हूँ और अपने बैंक्स में जो भी इनकम हो रही है सेल करने से वो मैं जमा कर सकता हूँ। नाउ इस इनकम के ऊपर कैसे टैक्सेशन होगा, इस बारे में मार्च 2021 में किसी राज्यसभा सेशन में पूछा गया था, जिसके रिप्लाई में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, उन्होंने ये कहा था दैट द गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ क्रिप्टो करेंसीज और एसेट्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ होल्डिंग ऑफ द सेम। नाउ क्या हेड्स ऑफ इनकम्स हैं जिसके तहत क्रिप्टो करेंसीज टैक्सेशन होंगी और क्या नेचर ऑफ होल्डिंग से उनका मतलब था, ये मैं इस वीडियो में आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
So, if we really want to grab an understanding of how crypto transactions are and how you can make income out of them and how tax laws apply on such types of transactions, we need to understand the modus operandi of an ecosystem which is based on a very similar nature. And the best example for such an ecosystem could be stock exchange markets. So, let us look at how activities are classified in stock exchanges. Like, ultimately you are doing sale and purchase of stocks, right? But income tax laws classify these sale and purchases into two parts. The first being trading of stocks, that is trading activities, and the second being investing in stocks, that is investing activities. Now in this video I'll be explaining you how this classification is derived and how income tax laws apply on them. And from this overall understanding of stock exchanges, we can derive or we can grab an understanding of how crypto transactions can be classified based on the nature of their transactions and how tax laws apply to them. So let us first have an understanding of what PGBP is in terms of stock exchanges or what trading activities are. So PGBP, which is the short for profit and gains from business and profession, is one of the 5 major heads of income under the Income Tax Act. And from the perspective of stock exchanges, किन एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं is based on one major factor, that is the volume of transactions. Now there's this general provision in the income tax laws which says that अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ₹2 करोड़ से ज़्यादा है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर इनटू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और जो आप इनकम अर्न करोगे फ्रॉम सच वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड PGBP, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. नाउ देयर इज ऑल्सो दिस प्रोविजन विच सेज दैट अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस 2 करोड़ से कम है बट कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है, दैट इज़ टू से 50 लाख रुपीज़ और 30 लाख रुपीज़ और लेट्स से 1.5 करोड़ रुपीज़, उन सिचुएशंस में ये देखा जाएगा कि आपकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है उन ट्रांजैक्शन से. नाउ इफ़ योर प्रॉफिट मार्जिन और इफ़ योर प्रॉफिट परसेंटेज फ्रॉम सच वॉल्यूम इज़ लेस देन 6%, then it will be considered that you are into speculation business, that is you are carrying on trading activities, and जो आप profit earn कर रहे हैं वो taxable हो जाएगी PGBP head में. Now there is also this general provision which says that if majority of your aggregate income for any previous year, यानी कि majority of your aggregate income for any particular financial year in general terms is comprising of activities that come from stock exchange purchase and sales, यानी कि आप स्क्रिप्स यानी कि आप किसी तरह की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बेच के मेजॉरिटी इनकम कमा रहे हो, यानी कि 51% से ज़्यादा इनकम आपकी स्टॉक एक्सचेंज से आ रही है, देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर अ ट्रेडर, you are carrying on trading activities from stock exchanges, and your income, overall income, will be taxed under the head PGBP. So yeah, ये भी एक फैक्टर है दैट मेजॉरिटी आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, द सोर्स ऑफ योर इनकम भी एक फैक्टर हो सकता है. नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक स्लैब रेट विच अप्लाइज टू PGBP इनकम्स. सो आपकी जो इनकम है फ्रॉम PGBP एक्टिविटीज़ वुड बी टैक्स्ड इन द जनरल स्लैब रेट, यानी कि जो नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल है SSCs पे बेस्ड ऑन देयर एज, उसी स्लैब रेट पे आपकी PGBP एक्टिविटीज़ से इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी. नाउ आई एम ऑफ दिस ओपिनियन और आई एम ऑफ दिस अजम्पशन कि ज़्यादातर लोगों में आपको पता होगा कि स्लैब रेट्स क्या होता है एंड किन तरह के SSCs की मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर एज, और कैसे स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हैं अलग अलग SSCs पे. Now it's not a problem that you're not aware of it. Just let me know down in the comment section and I'll make a separate video explaining from a layman's perspective what slab rates are, what kinds of SSCs are in income tax laws, and how slab rates apply to them. But this video is not going to be centered around income tax laws, rather it is going to be centered around cryptocurrency technology and how income tax laws in general apply to such cryptocurrency transactions. So yeah, बिजनेस एंड गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से
जो ट्रांजैक्शंस है वो वॉल्यूम एंड उनकी परसेंटेज इन द एग्रीगेट इनकम के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि जो एसएससी है वो इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉक एक्सचेंज में एंटर किया था या फिर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, और उसी अकॉर्डिंग उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो जाती है. नाउ द अदर फॉर्म ऑफ इनकम विच traders or which people who enter stock market or who get into stock exchange transactions earn is capital gains. Now capital gains क्या होते हैं, वो किन तरह के एक्टिविटीज़ से आते हैं, वो किन तरह की होती हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा. So capital gains, just like PGBP, capital gains is another major head of income in the Income Tax Act. और कैपिटल गेंस का बेसिकली आइडिया ये उसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, कैपिटल गेंस हमारी कैपिटल में गेन हमें मिले. तो इसके पीछे हमारा बेसिक आइडिया एज एन इन्वेस्टर ये होता है कि हम एक लेट्स से 100 रुपीज़ पे कोई भी सिक्योरिटी ख़रीदें, चाहे वो शेयर हो जाए, चाहे वो बॉन्ड हो जाए, चाहे वो डिबेंचर्स हो जाएं, या किसी भी तरह की सिक्योरिटी हम स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदें एंड उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करें, और उसके बाद जब उसकी मार्केट वैल्यू उस स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाएगी, सो लेट्स से 125 या 150 के आसपास पहुंच गई, हम उसको सेल करते हैं उस बढ़ी हुई मार्केट प्राइस पे. तो जो हमारा परचेज़ कॉस्ट और हमारी जो सेलिंग प्राइस का बीच में डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट बन जाए. इसी प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं. नाउ इनकम टैक्स लॉ ने इस प्रॉफिट को दो पर्सपेक्टिव से देखा है. या तो ये प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे क्लासिफाई होता है, किसी भी प्रॉफिट को कैसे कहेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इट इज़ बेस्ड ऑन वन बेसिक आइडिया कि आपने जो सिक्योरिटी खरीदी थी, इस वक्त जो आपने सिक्योरिटी खरीदी थी वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड किया. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से मैंने रिलायंस की सिक्योरिटीज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदी थी. ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एक रिलायंस की सिक्योरिटी मैंने ख़रीदी. नाउ इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप इन तरह की सिक्योरिटीज़ ख़रीद रहे हो और इनको 12 महीने तक होल्ड कर रहे हो और 12 महीने के बाद इनको सेल कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था. अगर आप इसी सिक्योरिटी को 12 महीने के पहले सेल कर दोगे तो माना जाएगा कि आपके लिए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है. और इसी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से जो मुझे इनकम मिलेगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. सो बेसिकली जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, इट इज़ द मोस्ट मेजर फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारी इनकम फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. अब मैंने जो 12 महीने का एग्जांपल लिया, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि लिस्टेड सिक्योरिटी रिलायंस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इसी तरीके से अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ के ऊपर अलग अलग तरह के पीरियड ऑफ टाइम्स को बेंचमार्क बना के हम लोग मानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अनलिस्टेड शेयर्स की बात करें तो उनके लिए बेंचमार्क है 24 मंथ्स. लेट्स से कि अदर तरह की सिक्योरिटीज़ यानी कि डिबेंचर्स हो गए, उनके लिए बेंचमार्क है 36 मंथ्स. तो जो तो 36 मंथ्स का बेंचमार्क है, क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस में ये हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट है. सो इसको याद रखना है कि 36 मंथ्स एक मेजर बेंचमार्क है. तो यानी कि अगर हमने अदर दैन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और अदर दैन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, हमने कोई भी अदर सिक्योरिटी 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड की और उसके बाद हमने बेचा, यानी कि 3 साल तक हमारे पास वो रही और उसके बाद हमने बेचा, तो जो इनकम हमें मिलेगी उसको बेचने से वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी. और 36 मंथ्स के पहले हमने बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगी. नाउ दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट कि कितनी तरह की सिक्योरिटीज़ स्टॉक मार्केट्स में हैं और क्या क्या उनके ऊपर बेंचमार्क है, कैसे कैसे रीट्स लग रहे हैं, बट इट विल बी सेंटर्ड अराउंड क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या रेलिवेंट है इसमें.
सो यस, ये 36 मंथ्स का बेंचमार्क बहुत ही रेलेवेंट है। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि 36 मंथ्स एज अ बेंचमार्क क्या डिटरमाइन कर रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नाउ आई होप इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से ये क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक पीरियड ऑफ होल्डिंग बेंचमार्क से कैसे डिटरमाइन हो सकती है। नाउ इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पीजीबीपी और कैपिटल गेंस की एक्सप्लेनेशन से हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लॉज की एप्लीकेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे, जो मैं अगले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। सो सिंस वी हैव ऑलरेडी इन ग्रेट डेप्थ अंडरस्टूड कि स्टॉक एक्सचेंजेस में किन तरह के ट्रांजैक्शंस को हम ट्रेडिंग एक्टिविटी कहेंगे और कैसे उन ट्रांजैक्शंस पे पीजीबीपी में इनकम आ जाती है। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू एनालाइज कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंडरस्टैंडिंग हम क्रिप्टो करेंसी की अंडरस्टैंडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में एज ऑफ येट इनकम टैक्स लॉ ने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई भी कैप नहीं लगाई है, यानी कि अभी तक कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंशन नहीं किया इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने, जिसके मदद से हम एनालाइज करें कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हाउएवर जो आज की डेट में रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इनकम से रिलेटेड, वो ये परसेप्शन ले रहे हैं कि क्या उन्होंने मेजर पार्ट ऑफ इनकम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से कमाई है या फिर क्या उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं इट इज़ फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या इट इज़ फ्रॉम अ स्पेक्यूलेटिव पर्सपेक्टिव। नाउ अगर इन दोनों में से कोई भी रीज़न है तो उसको वो एसएससी एज अ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर रहा है। नाउ वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि हम क्रिप्टो करेंसी अगर ख़रीद रहे हैं तो हमारा इंटीरियर मोटिव क्या है, और अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग से इनकम कमा रहे हैं तो हमारी कितने पार्ट ऑफ द एग्रीगेट इनकम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से आ रही हैं। सो बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर एनालिसिस हमें ईजिली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में तो हमारी जो टोटल इनकम है वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि पीजीबीपी हेड के अंदर जो इनकम टैक्स होती है उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, रादर इसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू कैपिटल गेन्स फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। नाउ मैंने आपको कैपिटल गेन्स की एक्सप्लेनेशन में एक बेंचमार्क बताया था विच वॉज 36 मंथ्स स्टॉक एक्सचेंज में। दिस 36 मंथ्स बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज इज एप्लीकेबल टू अदर देन शेयर्स। यानी कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी खरीद रहे हो स्टॉक एक्सचेंज में विच इज़ अदर देन शेयर्स, चाहे वो लिस्टेड शेयर हो चाहे वो अनलिस्टेड शेयर, और उसको आप 36 मंथ्स तक होल्ड किए और उसके बाद आपने बेचा तो आपके लिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, अदरवाइज वो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। नाउ इसी बेसिक 36 मंथ्स की बेंचमार्क को हम क्रिप्टो करेंसी पे भी अप्लाई करते हैं, जस्ट बिकॉज अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में ये नहीं बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किस पर्टिकुलर पीरियड को हम बेंचमार्क मानेंगे। इनकम टैक्स एक्ट एंड द प्रोविजंस अराउंड इट आर येट टू क्लैरिफाई ऑन दिस पर्टिकुलर बेंचमार्क। इस वजह से जो आज की डेट में रिटर्न भर रहे हैं उन्होंने इस 36 मंथ्स को विच इज़ एप्लीकेबल ऑन अदर देन शेयर्स, जो कि एक जनरल टर्म है, अदर देन शेयर्स यानी कि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी के ऊपर जनरल टर्म है, इसको बेंचमार्क मान करके 36 मंथ्स होल्ड करने के बाद अगर कोई क्रिप्टो करेंसी सेल किया उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज में तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पे टैक्स करेंगे। और उसी को अगर हमने 36 मंथ्स के पहले उसको क्रिप्टो एक्सचेंज में बेचा तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान के
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के तौर पे टैक्स करेंगे। नाउ हम क्यों बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस? हम इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरीके के गेंस के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। सो फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी पर्सपेक्टिव, अभी तक ये एजम्पशन है जितने भी रिटर्न भर रहे हैं करंट डेट में उनके लिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस अर्न कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को सेल करके, तो आपके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, जस्ट लाइक इट वाज एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ पीजीबीपी। मगर आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अर्न कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी सेल करके, यानी कि सपोज आपने 3 साल तक कोई क्रिप्टो खरीदी है। नाउ आई एम ऑफ दिस अजम्पशन कि ज़्यादातर लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने नहीं खरीदी होगी 3 साल पहले, बट लेट्स से अगर आपने खरीदी या फ्यूचर में आप होल्ड करेंगे किसी क्रिप्टो को 3 साल तक, तो फिलहाल जब तक इनकम टैक्स लॉ इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बना देता, तब तक आपको ये मानना है कि 3 साल के बाद अगर आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आएंगे आपके पास, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है वो 20% है। यानी कि आपकी टोटल जो प्रॉफिट है फ्रॉम सच क्रिप्टो करेंसी सेल, उसके ऊपर 20% का रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। सी दिस वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ अराउंड दिस थिंग, ठीक है। सपोज आपने क्रिप्टो करेंसी कहीं से ख़रीदा था किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में, देन इट्स वेरी वेल नोन कि आपका परचेज कॉस्ट क्या था और आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। इट्स वेरी वेल शोन ऑन ईच एक्सचेंज। बट सपोज आपने माइनिंग करी है। नाउ माइनिंग के साथ ये प्रॉब्लम है दैट सेक्शन 55 जो कि हमें ये डिटरमाइन कराता है कि किसी भी एसेट का परचेज कॉस्ट हमें क्या मानना है, माइनिंग के ऊपर सेक्शन 55 कुछ नहीं कहता, माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है, एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कहता। तो जब तक सेक्शन 55 क्लैरिफाई नहीं करेगा कि हमारा परचेज कॉस्ट क्या है माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी में, तब तक हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट, राइट। जब तक हमें परचेज कॉस्ट नहीं पता माइनिंग के केस में, तब तक हम प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते। यानी कि हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस है वही हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा परचेज कॉस्ट इनडिटरमाइनेबल है। अब इस इनडिटरमाइनेबल परचेज कॉस्ट की वजह से हमारी प्रॉफिट यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस ही पूरी प्रॉफिट हो जाती है, और इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा टैक्स बर्डन उठाना पड़ सकता है। सो इसके लिए अभी तक टैक्स अथॉरिटीज़ ने कोई अमेंडमेंट नहीं करी इनकम टैक्स एक्ट में, बट इट इज़ वेरी वेल लेट्स से एक्सपेक्टेड फॉर नाउ कि इसके ऊपर जल्द एक अमेंडमेंट आनी चाहिए। नाउ इन लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन, लेटर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या फ्यूचर हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के अराउंड टैक्सेशन का और क्रिप्टो करेंसी का इन जनरल। बट फॉर नाउ आपको पूरी सेलिंग प्राइस पर ही प्रॉफिट मानकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, ये लेट्स से आपने माइनिंग करी तो आपको पे करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग अराउंड क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन व्हेन इट कम्स टू capital gains. Now talking about the future of cryptocurrency taxation. So the basic provision of cryptocurrency taxation is based on the premise that cryptocurrency trading और cryptocurrency transaction बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, 923 मिलियन से हम लोग 1 बिलियन पर शिफ्ट हो गए हैं पोस्ट कोविड, अप्रैल 2020 के बाद से। नाउ इस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में इतना बूम किस लिए आया? जस्ट बिकॉज हमारे नज़रों में क्रिप्टो करेंसी की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। हमारे नज़रों में क्रिप्टो करेंसी एक वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गई, हमारे लिए वो एक वायबल इनकम अर्निंग सोर्स बन गया। इस वजह से उसकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ गई। नाउ कैसे वो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ हुई या कैसे वो वायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, उसका एक रीज़न है कोविड डोनेशंस। नाउ आपको पता होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम नाम की, विच इज़ वर्ल्ड वाइड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ। उनके जो फाउंडर थे
उन्होंने ड्यूरिंग वन ऑफ द वेव्स ऑफ कोविड इन इंडिया बिलियन ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी डोनेट करी थी इंडिया को, सो एज टू फाइट कोविड। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स जिसकी वजह से हमारे मन में एक तो एज अ फॉर्म ऑफ अप्रिशिएशन हमने उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड ऑल्सो हमारे मन में उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो गई। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स जिसकी वजह से क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स बूम हुए इंडिया में ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू। अनदर रीजन could be that this decade, that is 2021 to 2030, is considered to be a decade which will witness the boom in fintech sectors. So fintech में जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी fintech मार्केट्स हैं उसमें एक बूम देखा जाएगा इस पर्टिकुलर डेकेड में। अनदर रीज़न जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। सी, क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर अभी तक लीगल नहीं है। लाइक 99% ऑफ द कंट्रीज़ ने अभी तक उसको लीगल टेंडर नहीं डिक्लेयर किया है। एज ऑफ नाउ हमारे लिए वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन के रह चुका है। सो फिनटेक के पर्सपेक्टिव से क्रिप्टो करेंसी बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब तक ये लीगल टेंडर नहीं बनता तब तक हम इसमें कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि हमारी ये उम्मीद है कि ये फिनटेक के ग्रोथ की वजह से क्रिप्टो करेंसी की भी स्केलिंग इम्प्रूव होगी, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। इस अजम्पशन की वजह से मेजरली क्रिप्टो करेंसी बूस्ट हुई है इंडिया में। नाउ इस बूम को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी अपने इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाएंगे, क्योंकि उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेजरली जितने भी एसएससीज हैं जो कि नए नए इनकम्स अर्न कर रहे हैं इससे, उनके ऊपर अभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कितना रेट ऑफ टैक्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए आइडियली, या किस बेंचमार्क को उनको मानना चाहिए कैपिटल गेन्स एज्यूम करने के पहले। सो इन पर्टिकुलर चीज़ों के अराउंड क्लैरिफिकेशंस चाहिए एसएससीज को, क्योंकि उनकी मेजर इनकम हो सकती है क्रिप्टो करेंसी से हो। तो अथॉरिटीज़ को अपने सिटीज़न को सर्व करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स लानी चाहिए। नाउ इन अमेंडमेंट्स को लाने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, विच वाज क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को इंडिया में रेगुलेट करने का एक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट किया गया है। नाउ लेट्स से वो कब बिल अप्लाई होता है, कब से वो लगने लगेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स पे और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो जब बिल एक्ट के फॉर्म में हमारे सामने आएगा तब हम बता पाएंगे। एज ऑफ नाउ इसके बारे में स्पेकुलेट करने का देयर इज़ नो पॉइंट, बट इट इज़ फॉर श्योर कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ऐसे खुले सांड की तरह नहीं छोड़ने दिया जाएगा। इट विल बी रेगुलेटेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी फॉर श्योर। आज नहीं तो कल पक्का ऐसा होगा। सो अभी जो इसमें स्पेकुलेशन अनसर्टेनिटी है और एक बहुत ही बड़ा रिस्क है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा डूब जाएगा, बिकॉज़ हमारा जो प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था उसके फाउंडर्स ने विड्रॉ कर लिए प्रोजेक्ट्स, या फिर उसका फाउंडर भाग गया, वो सम रीज़न, सम और दी अदर रीज़न, जो क्रिप्टो करेंसीज़ के अगेंस्ट जितने भी फैक्टर्स अभी लोग बोलते हैं, अगर उनमें से कोई एक फैक्टर सच हो गया तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मेजरली वर्ल्ड के सारे गवर्नमेंट्स कोई ना कोई रेगुलेशन ज़रूर लेके आएंगी, और उस रेगुलेशन के तहत क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग होगी वो काफ़ी, जैसे स्टॉक मार्केट्स अभी ट्रेड हो रही हैं उस तरीके से भी हो सकता है ट्रेड हों। उनके ऊपर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लग जाए, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करें, तब आपके ऊपर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगे। तो इन तरह की प्रोविजंस को हम वेरी वेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी कह रहे थे लोग कि हो सकता है कि जो 2022 का बिल प्रेजेंट होगा उसी के साथ हमारे क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन लॉज अमेंड हो, बट
आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूरी है कि बिल के साथ ही होगा, आई एम एज्यूमिंग कि बिल के बाद होगा, बट फॉर श्योर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारे पास ज़रूर इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक अमेंडमेंट आ चुकी है शेड्यूल 3 में। व्हाट इज शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 इज़ वन ऑफ दो शेड्यूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट जो कि हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आना चाहिए और बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए। ना शेड्यूल 3 में ये अमेंडमेंट आई थी कि हमें क्रिप्टो करेंसी की जो होल्डिंग है किसी भी कंपनी की, वो हमें वेरी वेल प्रेजेंट करनी है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करनी है, ताकि हमारे कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो आउटसाइड इंटरेस्टेड पीपल हैं उनको वेरी वेल अवेयरनेस हो इस बारे में कि जिस कंपनी में हमारे पैसे हैं, जिस कंपनी में हमारा इम्प्लाइड इंटरेस्ट है, उसमें कितने परसेंट होल्डिंग या कितनी परसेंट ऑफ एसेट्स क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग के नाम पर हैं। तो उसको प्रेजेंट और उसको फेयर एंड स्क्वायर वैल्यू में डिपिक्ट करने की जो अमेंडमेंट आई वो शेड्यूल 3 ने सबसे पहले लाई कंपनीज एक्ट में। सो इस बेसिकली प्रेमिस पे हम ये कह सकते हैं कि या इन क्रिप्टो करेंसी का अच्छा खासा फ्यूचर है इंडिया में फ्यूचर में, और क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के अराउंड जो प्रोविजंस आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट होंगी, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी, और करंट सिचुएशंस को, करंट ट्रेडिंग पैटर्न को बिगाड़ने लायक ऐसे तो कुछ नहीं लेके आना चाहिए उन्हें। करंट सिचुएशन को फैसिलिटेट करने के लिए ही वो कोई ना कोई प्रोविजंस ज़रूर लेके आएंगे। So with this very detailed discussion on and around cryptocurrency and उसके taxation के around, I am going to wrap up this video. Now I do realize ये video थोड़ी लंबी हो गई, but मैं एक important point पे miss out कर रहा हूँ, which is El Salvador being the very first country in the world to legally or officially recognize cryptocurrency as a legal tender. So इस बारे में मैं एक डिलेमा में हूँ कि इधर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ या फिर इसको यूट्यूब फॉर्म या हाईलाइट के शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इस चैनल पे रिलीज़ कर दूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस तरीके के वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिकली, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट वर्ल्ड से हो, चाहे वो फाइनेंस वर्ल्ड के किसी भी करंट या पास्ट इवेंट से हो, या चाहे वो स्कैम्स की दुनिया से हो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई डू हैव अ लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़, बट आई विल ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज योर कॉमेंट सेक्शंस। और उसके अलावा regarding this current video, if there's any suggestions that you'd like to give me, I will definitely take them and I am open to feedback. अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, आई विल डू इट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। सो प्लीज़ ओपन हार्टेडली कमेंट सेक्शन को यूटिलाइज़ करिएगा मुझे फीडबैक एंड सजेशंस देने के लिए। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई रियली होप एंड प्रे कि आप इतनी इनकम ज़रूर अर्न करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कि आपको स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ जाए, एंड ये वीडियो आपको एज अ गाइडलाइन हेल्प करे उस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में। ऑल्सो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई भी फर्दर अमेंडमेंट आती है या कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो मैं इस वीडियो को टैग करके एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें वो अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स को मैं एड्रेस कर दूंगा। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको इन तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है, बिकॉज आई विल बी रिलीजिंग अ सीरीज़ ऑफ सच वीडियोज़ नाउ जो कि आपको अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में वैल्यू प्रोवाइड करें। सो टेक केयर, stay safe, and thank you for watching The Learner.